Hello, my dear children. Very good morning. Just your most welcome in the 11th class accountancy. We have to study the rectification of errors. The theory, it was explained yesterday. Now, yesterday, I would like to tell you the process, the method of rectifying the wrong entry into rectifying entry. By opening the accounts, by writing the wrong entry, by passing the correct entry, just the rectifying entry is made. So my dear children, we have to learn, be a good learner, and we have to learn how the rectifying entry is passed. Regarding the practical question given in your book, that is question number 3. In question number 3, credit sales to first information given. Credit sales to Mridula rupees 5,000 were recorded as rupees 5,400. Just credit sales to Mridula 5,000 means this one is the excess amount recorded in credit sales. My dear children, how this will be rectified? Just contrast entry. Now the correct entry, see here, credit sales to Mridula. What comes in debit, what goes out credit in nominal receiver, debit, giver credit. Apply the rules of passing the journal entry. Now see, just the receiver is the Mridula debit. Mridula debit to sales account. This one is the correct entry, the amount we will have to enter just the 5,000. But what enter the amount? 5,400. 5,400 in the place of 5,000. Just the excess amount, that is the excess of debit, should be credited, excess of credit should be debited. So 5,400, 5,400. The rectifying entry will be sales is the credit, so sales is the debited, sales account, debit to Mridula. This one is the rectifying entry. The amount, what is the excess amount of that should be 5,000 and 4,400 is the excess amount. So you can write 400 this way. मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि 5,000 के स्थान पर 5,400 रुपए लिख दिया गया है, तो 400 रुपए से आपका सेल्स अकाउंट भी एक्सेस हो रहा है, जो क्रेडिट है तो डेबिट कर दिए, सेल्स अकाउंट डेबिट,
और मृदुला 400 से एक्सेस कर रही है, जो डेबिट है उसे हम क्रेडिट कर दिए। ये रेक्टिफाइंग एंट्री। क्लियर? कितना आसान है देखो। इन सेकेंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम नैना 8000 वर रिकॉर्डेड एज ₹8,800। क्रेडिट परचेज, नैना परचेज हमेशा क्या होता है बेटा? डेबिट होता है। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू नैना, ये आपका कितना होना चाहिए? 8000 होना चाहिए, लेकिन से कितना लिखा गया? 8800। अब ये देखा 800 से एक्सेस है दोनों, तो इसका अपोजिट एंट्री करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल्स द एक्सेस ऑफ डेबिट शुड बी क्रेडिटेड। एक्सेस ऑफ डेबिट परचेज आपका 800 से डेबिट है, ये क्रेडिट हो जाएगा और नैना डेबिट हो जाएगी। रेक्टिफाइंग एंट्री जो होगा वो नैना डेबिट टू परचेज। This way you can नैना डेबिट टू परचेज 800। क्लियर? बहुत आसान है। उसी तरह से तीसरा है गुड्स रिटर्न टू प्रिया 12,000 वर रिकॉर्डेड एज ₹12,200। गुड्स रिटर्न टू प्रिया, दिस वन इज द परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट, so the entry will be Priya David to purchase return या goods return आप कह सकते हैं, to purchase return। ये एंट्री होती है और ये कितना लिख दिया गया है? 12,000 होना चाहिए, लेकिन से 12,200। एक्सेस ऑफ डेबिट मतलब यहाँ पर 12,200 हो गया, जबकि अमाउंट कितना चाहिए आपका? ओनली 12,000। तो 200 एक्सेस है। एक्सेस ऑफ डेबिट शुड बी क्रेडिटेड एंड एक्सेस ऑफ क्रेडिट शुड बी डेबिटेड। परचेज रिटर्न अमाउंट डेबिट, रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू प्रिया 200। This one is the excess amount. How easy this one you can see over here, my dear. And the fourth information, goods returned from राशि। राशि से सामान वापस आया, means the goods are sold to राशि। Just the goods had been sold to राशि। राशि को सामान बेचे गए थे और बेचा हुआ सामान वापस आया बेटा, तो इसका मतलब सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट। सेल्स रिटर्न व्हाट कम्स इन डेबिट? तो डेबिट होता वर रिकॉर्डेड एज 11,000। 1,000 से आपका एक्सेस है, तो सेल्स रिटर्न को क्रेडिट कर दोगे और राशि को डेबिट कर दोगे। रेक्टिफाइंग एंट्री हो जाएगा आपका 1,000 से सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राशि 1,000 and sales return means just you can see over here sales return account debit always debit, sales return account debit to राशि। ये हमेशा होता है। आप
11,000 है बेटा, तो 10,000 होना चाहिए, तो 1,000 से अधिक हो गया। अब इसका उल्टा एंट्री कर दो, रेक्टिफाइंग एंट्री होगा राशि डेबिट टू सेल्स रिटर्न कितने से 1,000। This one is the rectifying entry. Now question number 4. Just the two accounts are affected in two-sided errors. Just you can see question number 4. That is given information of the 4 questions. How will be this one? This will be rectified. Rectifying entry. Now my dear children, just see the terms and you will rectify the errors in very easy way. First information, a credit sale of goods to Ram. A credit sale of goods to Ram. तो जो एंट्री होनी चाहिए, the entry should be passed. Credit sale means Ram debit to sales account. This one is the correct entry. Of rupees 2,500. 2,500. Has been wrongly passed through the purchase book. और ये क्या हो गया, परचेज बुक में के थ्रू अपना ये हो गया, सेल था और परचेज बुक में आ गया बेटा। मतलब जो रॉन्ग एंट्री हुई ये क्या हो गई, परचेज अकाउंट डेबिट टू Ram 2,500 ये रॉन्ग एंट्री है और ये करेक्ट एंट्री। अब ऐसा हमें एंट्री पास करना है बेटा कि हम जो है, हमारा जो है गलत न हो, कहीं काटना पीटना न पड़े और हमारे अकाउंट सारे के सारे कितने खाते प्रभावित हो रहे हैं, राम का अकाउंट, सेल्स का अकाउंट और परचेज का अकाउंट, 3 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं इस एक गलत पोस्टिंग से। तो रेक्टिफाइंग एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा सेल्स क्रेडिट नहीं हुआ है तो हम सेल्स को क्रेडिट करना है, सेल्स के खाते में गया है ये देख लीजिए, और राम को डेबिट करना है, राम डेबिट होगा, ये करेक्ट एंट्री है, तो हमने यहाँ पर रेक्टिफाइंग एंट्री में राम डेबिट कर, राम डेबिट टू सेल्स कितना आएगा, सेल्स हमारा 2,500 का है, हमने ले लिया 2,500। अब यहां पर आइए देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो जो डेबिट हो गया उसे हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए टू परचेज अकाउंट कितने से डेबिट है, 2,500 और राम क्रेडिट ही है 2,500 और डेबिट होंगे तो ये दोनों मिलाकर के इनका अमाउंट हो जाएगा 5,000। दिस वन इज द रेक्टिफाइंग एंट्री। देखिए कितना आसान है, आप एक तरफ करेक्ट एंट्री लिख लें और दूसरी तरफ रॉन्ग एंट्री लिख लें। जो नहीं अकाउंट में आया है उसे क्या करें, आप अकाउंट में ला दीजिए, टू सेल्स ला दीजिए। राम को डेबिट ही होना है करेक्ट एंट्री में, तो राम को हमने डेबिट कर दिया। अब सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना ही है,
सेल्स को क्रेडिट कर दिए। रॉन्ग एंट्री में हमारा रॉन्ग तो क्रेडिट है तो डेबिट कर ही दिए हम, परचेज अकाउंट डेबिट है उसे हमने उठा करके क्रेडिट कर दिया। अब ये पूरा अमाउंट रॉन्ग कितने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा? 5000 से। क्लियर बेटा? देखो कितना आसान है, कितना आसान तरीका। एक तरफ रॉन्ग एंट्री, दूसरी तरफ करेक्ट एंट्री लिख करके आप एनालाइज करेंगे। When you will analyze the situation, that what's the account will be debited, that will be debited, and what's the account should be credit will be credited, what's the account that is in wrong posting debited should be credited. Just you can see it. ये होता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का तरीका। दूसरा देखें आप, दूसरी एंट्री है अ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम श्याम अमाउंटिंग टू ₹1000 हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। आपने क्रेडिट परचेज श्याम से किया है, तो करेक्ट एंट्री क्या होगी बेटा? करेक्ट एंट्री देखें आप, करेक्ट एंट्री क्या होगी? करेक्ट एंट्री आपकी होगी, परचेज हमेशा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू श्याम, टू श्याम 1000, ये करेक्ट एंट्री होगी। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में, इसे सेल्स बुक में डाल दिया गया, तो सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। ठीक वही चीज रॉन्ग एंट्री हो गई बेटा। रॉन्ग एंट्री आपकी, जस्ट यू कैन फाइंड द रॉन्ग एंट्री, दैट इज श्याम डेबिट, श्याम डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट। ये रॉन्ग एंट्री है 1000। हमें पास करना चाहिए था अकाउंटेंट को ये एंट्री, और उसने पास कर दिया रॉन्ग एंट्री। श्याम को डेबिट कर दिया जबकि श्याम को क्रेडिट होना चाहिए। क्लियर है? और सेल्स को तो क्रेडिट करना ही नहीं था, परचेज को डेबिट होना चाहिए था। करेक्ट एंट्री में लिखे हैं हम, देखिए रेक्टिफाइंग एंट्री जब करेंगे तो परचेज अकाउंट कहीं आया नहीं है रॉन्ग एंट्री में, तो हम परचेज को डेबिट कर दिए। परचेज अकाउंट डेबिट कितने से? 1000। अब सेल्स हमारा क्रेडिट हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था, तो क्रेडिट हुआ। इसको रिमूव करने के लिए हम सेल्स को भी डेबिट कर दिए। सेल्स अकाउंट डेबिट 1000, सेल से निकाल लिए हम, क्रेडिट था 1000 निकाल दिया। और श्याम को क्रेडिट होना चाहिए था, तो 2 श्याम चूंकि डेबिट है इसलिए यहाँ पर क्रेडिट हो गए। अब कितना? 2। ना काटना पड़ा कहीं, ना इरेज करना पड़ा, हमने एक ऐसी एंट्री पास कर दी रेक्टिफाइंग एंट्री, बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड, ये नरेशन लिख दे, बीइंग एरर्स रेक्टिफाइड। ये इसका तरीका होता है, इस तरह से किया जाता है। तीसरा है रिटर्न ऑफ गुड्स फॉर ₹1100 टू मोहन। मोहन को हमने गुड्स रिटर्न किया, तो करेक्ट एंट्री जो हो जाएगी वो होगा मोहन डेबिट, मोहन डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। कितने का है आप देखेंगे, परचेज रिटर्न कितने का है? 1100।
1100 रुपए का, और इसे हमने कहां डाल दिया? रॉन्ग एंट्री कौन सी कर दी? रॉन्ग एंट्री सेल्स रिटर्न बुक में चला गया। मतलब हमने ये लिख दिया सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू मोहन, टू मोहन। ये रॉन्ग एंट्री हो गई। अब बेटा रेक्टिफाइंग एंट्री जब करेंगे, रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए हमारा परचेज रिटर्न तो क्रेडिट होना चाहिए, इसका कहीं नाम ही नहीं आया है। मोहन को डेबिट होना चाहिए तो हमने लिख दिया मोहन डेबिट। रेक्टिफाइंग एंट्री में सुधार वाले मोहन डेबिट, दोनों एंट्री से एनालाइज करेंगे जो दिया गया है, इससे आप सही कर लेंगे। मोहन को डेबिट होना चाहिए, करेक्ट एंट्री है, मोहन को डेबिट कर दिया। टू परचेज रिटर्न को भी क्रेडिट होना चाहिए, इसका नाम नहीं आया तो टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न। और सेल्स रिटर्न यहां पर डेबिट है तो इसे हटाना है हमें, तो टू सेल्स रिटर्न। अब आप देखें रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई 1100 और ये मोहन के नाम डेबिट हो गया 2200, 2002। वेरी सिंपल। एंड फोर्थ और रिटर्न ऑफ गुड्स वर्थ 500 बाय गणेश वर एंटर्ड इन परचेज रिटर्न। ठीक इसका अपोजिट, मतलब करेक्ट एंट्री गणेश ने सामान वापस किया है, बेचा हुआ सामान, तो करेक्ट एंट्री होगी सेल्स रिटर्न डेबिट टू गणेश। ये हमारी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी 500 रुपीज का, लेकिन से हमारी रॉन्ग एंट्री हो गई। ये परचेज रिटर्न में आ गई गणेश डेबिट, रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? गणेश डेबिट टू परचेज रिटर्न, टू परचेज रिटर्न 500, ये रॉन्ग एंट्री हो गई। अब रेक्टिफाइंग एंट्रीज के बगैर काटे पीटे हम कैसे इसका सुधार करेंगे? आप देखेंगे कि हमारी करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए? सेल्स